of election season, 3 phases gone, and while there has been a lot of chatter or a drop in voting percentages, what has also gained traction is the statement which was made by the Prime Minister that the Muslim community also now needs to look within and ask itself, how long will they continue to be engaged in this political game of putting people on the throne of power or unseating them? With me, someone who's the original Muslim supporter, critique turned supporter of Prime Minister Modi, Zafar Sareshwala. Let me begin by asking you, what do you make out of the statement which was made by the Prime Minister that the Muslim community needs to ask itself, how long will you be engaged in a political game of seating or unseating of political parties on a seat of power? What do you make out of that statement? What Prime Minister said, this has been going on within the Muslim community since last couple of years. And it was more pronounced in this election. I feel that the politics put BJP aside for a moment. BJP has not been giving tickets to Muslims for years. But the political parties who get at least 80%, 90% of Muslim votes, they also don't give Muslims ticket. You take the recent elections. You start from Maharashtra, not a single ticket by the so-called secular parties, Congress or the other parties. Maharashtra, 0. Rajasthan, 0. Gujarat, 0. Madhya Pradesh, 0. Uttar Pradesh, 2.5%. Bengal, where of course large chunk of Muslim vote goes, again less than 5%. So Muslims have now felt that हमारा काम जो है वो सिर्फ वोट देना है, वोट लेने में तो हम होंगे ही नहीं. So now this has been going on in the minds of Muslims that the so-called political parties who want Muslim votes, they also only want Muslim votes. They don't want Muslims. Because if they talk of winnability, for example, they could have given Muslims in Rajya Sabha. Recently, Rajya Sabha election happened. So now Muslims have very clearly felt neither we can bring somebody nor we can make somebody out. So what does it tell you then? No, but tell me one thing, Zafar, that on one hand, I find that there is a lot of commentary which goes on that 51 civil servants this time who's qualified the UPSC exam are from the Muslim community. That it's the biggest ever, in a long, long time. On one hand, this sentiment. On the other hand, the political class, and whether it's a Congress party or any other regional party also now, in a national election, for sure, people perceptually want to be away from the Muslim community. Does this reflect poorly on the Muslim community, or does this reflect poorly on the Indian political class? मैं तो मुसलमान को जब टिकट ही नहीं मिलेगी तो वो ना असेंबली में जाएगा, ना वो काउंसिल में जाएगा, ना वो पार्लियामेंट में जाएगा. आप देखिए 2014 में 29 थे, उसके बाद 21 हो गए. हो सकता है कि ये जो पार्लियामेंट आएगी इसमें 15 भी नहीं होंगे. तो मुसलमानों ने ये समझ लिया है अब कि अगर हम अपना रेलेवेंस चाहते हैं इस मुल्क में तो वो एक ही रास्ते से हो सकता है, तालीम, हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन. और हम लोग खुद एक मूवमेंट चला रहे हैं, आपको पता है, तालीम और तरबियत के नाम से, जिसमें हम मुसलमान नौजवान बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी, कैपिटल मार्केट और एंटरप्रेन्योरशिप की पूरी वर्कशॉप चलाते हैं. अच्छा, यहाँ देखिए कि मेरे जितने सपोर्टर हैं इसमें, जो ट्रेनर है, जो लोग मुझे फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हैं, वो सारे नॉन मुस्लिम हैं, जबकि उनको मालूम है कि इसका डायरेक्ट फायदा मुसलमानों को हो रहा है. तो ये भी एक नैरेटिव है. तो अब मुसलमानों ने ये तय किया है कि भाई यूपीएससी के एग्जाम, हम बैठते ही नहीं थे इम्तिहान में पहले. भाई हमको कोई बीजेपी ने या विश्व हिंदू परिषद ने या बजरंग दल ने कनपट्टी पर बंदूक तो नहीं रखी थी कि आप पढ़ाई मत करो, आप इम्तिहान में मत बैठो. तो अब जो है मुसलमानों ने ये तय किया है कि हम तालीम के रास्ते से हाईएस्ट लेवल हम अपने आप को रेलेवेंट बनाएंगे. इसलिए मुसलमान का जो आप देखेंगे कि बहुत क्वाइट है इस इलेक्शन में. वो ज्यादा उसको कोई, ठीक है, बंद कमरे में जाकर जिसको वोट देना है दे, वो ज्यादा शोर शराबे में नहीं. आपने देखा होगा यूपी में, गुजरात में भी इलेक्शन हुआ, जोहापुरा जैसे इलाके में, जैसे जानते ही नहीं है, जो पहले लंबी कतारें होती थी, मुसलमान आराम से जिसको देना ही दो. मुसलमानों ने तय किया है कि इस रास्ते से हमारा कोई रेलेवेंस नहीं हो, हमें ये रास्ता पकड़ना. तो ये जो पहले 3 चरणों में, खास तौर से द फर्स्ट 2 phases in UP and Bihar, what we saw was that the voting percentages in Muslim dominated areas, whether it was Muradabad, Rampur in UP, or it was Araria in Bihar, even in certain parts of Assam, we saw that what was going on was that between 2004 to 9 to 14 to 19,
the voting percentage in Muslim dominated areas was increasing. But in 2024, it seems to drop down by 5 to 7% on an average. How do you read into this drop in voting percentages in areas dominated by Muslims? See, Bhupen, I've been hearing this chatter since last couple of months. Recently, before election, we had done this Talim o Tarbiyat program in Allahabad. Before that, I had done in Jaunpur, very near to the election time. Sure. What I was hearing from the Muslims, particularly when I was in Allahabad, at that time, this Rajya Sabha election had happened. And the parties which were thriving on Muslim votes, they did not give a single Muslim Rajya Sabha seat. So lot of intellectual Muslims, educated Muslim लोग ये भी मुझे कह रहे थे लखनऊ में, इलाहाबाद में कि भाई योगी की हुकूमत है 7 साल से, ऐसा कौन सा नुमाया फर्क हमारी जिंदगी में आ गया, या इससे पहले हम कौन सी बेहतरीन जिंदगी गुजारते थे. तो मुसलमानों में ये एक फीलिंग अब आ गई है कि ठीक है भाई, जिसको हुकूमत करनी है करो, हमको फायरिंग रेंज में मत डालो. क्या होता था मैं आपको बताऊं कि ये रखा जाता था कि गोया बीजेपी को हराने में मुसलमान है, हालांकि न मुसलमान किसी को हरा सकता है, न मुसलमान किसी को ला सकता है. आप यूपी देख लीजिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी भूपेन अगर उसके पास साइजेबल हिंदू वोट नहीं है तो खाली मुसलमानों के वोट से इलेक्शन नहीं जीत सकते. लेकिन क्या ये सच नहीं है? लेकिन जफर भाई ये बताइए कि क्या ये सच नहीं है, चाहे हैदराबाद में जो बीजेपी की जो कैंडिडेट थी, जो कि एक इमेजिनरी धनुष बाण चला रही थी एक मस्जिद के ऊपर, या बीजेपी के जो और कुछ नेता है, कितनी बार हम देखते हैं चुनावी सरगर्मी में, इन द हीट एंड डस्ट ऑफ इलेक्शंस, certain comments are made that the community which produces the maximum number of children, what do you do with them? I spoke about the Hyderabad candidate. Does this not forever put a question mark on which is the party which continues to convert the Muslim community into the other community? Is that not a fundamental problem with electoral politics? See, I'll tell you what. Muslims see both the things. एक मुसलमानों की मुखालिफत में बोलने वाला एक तबका है इलेक्शन के जमाने, और एक मुसलमानों की मोहब्बत में बोलता है ना. पुराने जमाने से आप देखोगे कि सच्चर कमेटी का रिपोर्ट है, हम इंप्लीमेंट करेंगे. वो एक रिपोर्ट आया था, जस्टिस क्या नाम था उनका, मिश्रा कमीशन रिपोर्ट आया था, वो हम इंप्लीमेंट करेंगे, रिजर्वेशन डालेंगे. तो एक मोहब्बत में बोलते हैं, जैसे मुसलमानों को पहला इसका जो निवाला है वो मुसलमानों को मिलना चाहिए, माइनॉरिटी को मिलना चाहिए. तो ये भी बोल है और वो भी बोल है. तब मुसलमान समझ गया है कि इलेक्शन के जमाने में दोनों होगा. एक हमारी मुखालिफत में कुछ बोल आएंगे, वो भी बोल है, कुछ हमारी मोहब्बत में बोल आएंगे, वो भी बोल है. इसलिए कि जो बोलते हैं मोहब्बत में, वो भी सिर्फ बोलते हैं. अगर वो करते हैं तो मुसलमान का हाल 75 साल की आजादी के बाद ये नहीं होता. भाई अगर आप देखें 1947 में जो मुसलमानों का जो पोजीशन थी एजुकेशन में, या जितने इकोनॉमिक इंडिकेटर है ग्रोथ के, उसमें जो पोजीशन आजादी के वक्त थी, 75 साल में मुसलमान जो है वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से भी नीचे गिर गया है. तो अगर ये सारी बातें जो कहते हैं अगर वो करते तो मुसलमान का हाल ये नहीं होता. 2024 के चुनाव में मुझको जफर भाई ये बताइए कि 2024 के इस चुनाव में मुस्लिम समुदाय कहाँ है? क्या मुस्लिम समुदाय हार मान चुका है? सियासत वाली प्रायोरिटी में हमने जिंदगी लगा दी और हासिल कुछ भी नहीं हुआ. और यहाँ जो है ये जो प्रायोरिटी एजुकेशन की, इसमें भूपेन हमें किसी की जरूरत नहीं है. भाई मुझे तालीम हासिल करने में, यूपीएससी के एग्जाम में बैठने में, जेई के एग्जाम देने में, या जितनी भी कैट की एनक्लेट के एग्जाम देने में मुझे किसी की जरूरत नहीं है. भाई मैं मेहनत करूं, मैं इम्तिहान में बैठूं और उसमें नंबर लेके आऊं, मैं आगे बढ़ूंगा. और सियासत में तो ये पार्टियां अगर मुझे टिकट ही नहीं देंगी तो मैं कौन सी सियासत करूंगा. तो मुसलमानों ने ये तय किया है कि भाई जिसमें मुझे किसी की जरूरत नहीं है वो कामों में मैं अपने आप को लगाऊं और इस रास्ते से मैं फिर रेलेवेंट इस मुल्क में हो जाऊं. All right, always a pleasure speaking to you, Zafar bhai. Thank you so much. Thank you so much for joining us.